پیٹروس ایباکا سے سالار سکندر کی پہلی ملاقات بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ اسے کانگو میں آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا جب لاموکو نامی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹروس ایباکا کا تقریباً 2 درجن کے قریب پگمیز پستہ قد لوگوں کے ساتھ اچانک وہاں آ گیا تھا، جہاں سالار اور اس کی ٹیم کے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے، جسے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک یورپین ٹمبر کمپنی کو لیز پر دیا گیا تھا۔ ان کے پاس پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں کی طرف سے دی جانے والی سیکیورٹی موجود تھی، اور ان گارڈز نے ایباکا اور اس کے گروپ کے لوگوں کو یکدم وہاں نمودار ہوتے دیکھ کر حواس باختگی کے عالم میں بے دریغ فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سالار نے 2 پگمیز کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر بلند آواز میں ایباکا کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا تھا، وہ حملہ کرنے نہیں آئے، بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا اور اسی نے سب سے پہلے ایباکا کی پکار سنی تھی۔ سالار کی ٹیم کے ساتھ موجود گارڈز اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک ٹیم کے تمام افراد کو گاڑیوں میں پہنچا چکے تھے، ماں سوائے سالار سکندر کے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گارڈز کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہوتا اور پھر اس کی گاڑی بھی وہاں سے تیز رفتاری سے غائب ہو جاتی، سالار نے گارڈ سے وہاں کی مقامی زبان کنگالا میں کہا تھا کہ وہ اس پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ فائرنگ بند کر دیں کیونکہ یہ یک طرفہ ہے۔ دوسری طرف سے نہ تو فائرنگ ہو رہی ہے نہ ہی کسی اور ہتھیار کا استعمال۔ اس کے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے وہ نکالا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر دوسرا گروپ واقعی مسلح ہوتا تو وہ یکدم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کی سیکیورٹی پر تعینات گارڈز ان پگمیز کے سامنے آنے پر اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے اس طرح بالکل سامنے آ جانے پر ہوئے تھے۔ فائرنگ اب تھم گئی تھی۔ اس کی تقلید میں اس کی سیکیورٹی کے افراد بھی باہر نکل آئے تھے۔ وہاں اب صرف 2 گاڑیاں تھیں۔ ٹیم کے باقی سب افراد وہاں سے اپنے اپنے گارڈز کی حفاظت میں نکل چکے تھے۔ فائرنگ کے تھمتے ہی ایباکا بھی باہر نکل آیا تھا۔ سالار نے چلا کر اپنے گارڈز کو گولی چلانے سے منع کیا تھا۔ پھر وہ اس 4.5 فٹ قد کے بے حد سیاہ چپٹی ناک والے اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا۔ ان ننگے پاؤں والے پست قامت لوگوں کے درمیان جاگرز پہنے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ پیٹروس ایباکا اس پست قامت شخص نے آگے بڑھ کر تعارف کرواتے ہوئے سالار سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھامنے سے پہلے سالار نے بڑے نپے تلے انداز میں ایباکا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ان مفلوق الحال لوگوں ہی کی طرح ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ مالی امداد نہ صحیح، لیکن خشک خوراک کے ڈبے، دودھ، جوسز بھی ان کے لیے ایک عیاشی ہوتی۔ سالار بھی ایباکا سے ایسی ہی کسی ڈیمانڈ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جواباً ایباکا کی زبان سے اپنا نام سن کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس نے ایباکا سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، پھر بھی وہ اسے نام سے کیسے جانتا تھا؟ وہ ایباکا سے یہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے جواباً اسے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ لوموکا میں ہونے والے وزٹ کے بارے میں بھی اسے بینک کے آفس میں کام کرنے والے کسی مقامی آدمی نے بتایا تھا، جس نے ایباکا کی سر توڑ کوشش کے باوجود سالار سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ کے حصول میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔
इबाका वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड से मुलाकात के लिए कई महीनों से कोशिश कर रहा था। वो सालार के ऑफिस नंबर्स पर हर रोज ढेरों कॉल्स करता रहता था। वेबसाइट पर मौजूद उसके ईमेल एड्रेस पर उसने सैकड़ों ईमेल्स की थीं, जिनका जवाब हर बार सिर्फ मौसूली ही का आया था। इसके बाद आगे कुछ नहीं। फोन कॉल्स रिसीव करने वाले सालार के अमले के अफराद के पास भी इबाका के लिए सिर्फ एक जवाब था, वो मीटिंग में है, आपका पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। इबाका की मुलाकात का मकसद जानकर उसे जवाबन बड़े नॉर्मल अंदाज में टाला जाता। उसकी गुफ्तगू सुनते हुए सालार उसकी जुबानो बयान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। उसे अब शुबा नहीं रहा था कि बेल्जियम की कॉलोनी होने की वजह से जिस मुल्क की कौमी जुबान फ्रेंच हो, वहां इस अमेरिकन लबो लहजे में अंग्रेजी में इतनी रवानी से बात करने वाला जंगलात का बासी होने के बावजूद बैरून मुल्क का तालीम याफ्ता होगा। ये नाकाबिले यकीन बात थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ सालार सिकंदर ने सुना था, उसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। पेट्रूस इबाका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ग्रेजुएट था और वॉल स्ट्रीट में जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ 5 साल काम करने के बाद कांगो आया था। अपने वॉलेट से निकाले हुए कुछ विजिटिंग कार्ड्स उसने सालार सिकंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। उसने बेहद बेयकीनी से उन्हें पकड़ा। वो फकीर, पस्त कामत, बेमाया शख्स था। कांगो के जंगलात में तीरों, नेजों और पत्थरों से शिकार करके पेट की भूख मिटाने वाला एक जंगली। वो हार्वर्ड के कैनेडी बिजनेस स्कूल कहां से पहुंच गया था और फिर जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ मुंसलिक रहना, तो फिर वो यहां क्या कर रहा था? और ये वो सवाल था जिसका जवाब पेट्रूस इबाका ने सालार सिकंदर को उसके ऑफिस में दूसरे दिन अपनी दूसरी मुलाकात में कागजात के एक अंबार के साथ दिया था, जो वो इस मुलाकात में सालार सिकंदर को देने आया था। पेट्रूस इबाका 10 साल की उम्र में लुमाका में एक बच्चा के तौर पर एक मिशनरी से मुतारिफ हुआ था, जो उसे अपने साथ कांगो के जंगलात में वहां के लोगों से राब्ता और कम्युनिकेशन के लिए साथ लेकर फिरता रहा। और फिर उसे इस हद तक इस बच्चे के साथ लगाव हो गया कि बीमारी की वजह से कांगो छोड़ने पर वो इबाका को भी अपने साथ अमेरिका ले गया था, जहां उसने उसे पेट्रूस का नाम दिया, एक नया मजहब भी। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि उसने इबाका को तालीम दिलवाई, तालीम के लिए खैरात से फंडिंग दिलवाई। इबाका बेहद ज़हीन था और रेवरेंड जॉनसन ने उसकी जहानत को जांच लिया था। वो इबाका को इसके बाद हर साल कांगो लाता रहा, जहां इबाका का खानदान आज भी इसी तरह जी रहा था। 10 साला इबाका ने अगले 25 साल अमेरिका में गुजारे थे, मगर इसके बाद वो अमेरिका छोड़ आया था। वो अपने लोगों के पास रहना चाहता था क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी, और उन्हें उसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से होने वाले बहुत से मंसूबों में से एक मंसूबा जंगल के उस हिस्से में शुरू हो गया था जहां इबाका का कबीला आबाद था। उसका खानदान और खानदान से भी बढ़कर वो 10,000 लोग जो अब जंगल के इस हिस्से से बेदखल किए जा रहे थे, जिसमें वो सदियों से रह रहे थे, जंगल कटने जा रहा था। वो सारी जमीन साफ होती, फिर उसके बाद वहां उन मादनियात की तलाश शुरू होती जो इस मंसूबे का दूसरा हिस्सा था। और इबाका का मसला उसका अपना खानदान नहीं था। इबाका का मसला वो पूरा जंगलात का हिस्सा था जो अब जगह जगह जोन्स बनाकर काटा जा रहा था और कहीं नेशनल पार्क बनाकर उन लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा था। हम 5 लाख लोग हैं, मगर ये जंगल तो कांगो के 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। वर्ल्ड बैंक टिम्बर इंडस्ट्री को मुआवनत दे रहा है क्योंकि इससे हमारी गुर्बत खत्म होगी। जब चंद दिहाइयों में जंगल ही गायब होकर यूरोप और अमेरिका की फैक्ट्रीज और शोरूम्स में महंगे दामों बिकने वाली लकड़ी की अशिया में तब्दील हो जाएंगे, तो कांगो के लोग क्या करेंगे?
तुम लोग हमसे वो भी छीनना चाहते हो जो खुदा ने हमें दिया है। अगर कभी हम वेस्ट में उनसे सब कुछ छीनने पहुंच गए तो तुम्हें कैसा लगेगा? इबाका ने अपना केस बहुत तहजीब से पेश किया था, मगर बात के इख्तिताम तक उसकी बेचैनी उसके लबो लहजा से झलकने लगी थी। सालार सिकंदर के पास उसके सवालों के रटे रटाए जवाबात थे। इस प्रोजेक्ट की तरह कांगो में भी होने वाले और बहुत से प्रोजेक्ट्स की तफसीलात उसकी उंगलियों पर थीं। वो वहां वर्ल्ड बैंक का कंट्री हेड था और यह मुमकिन नहीं था कि इन प्रोजेक्ट्स की अहमियत और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में उसे पता ना होता। मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि पेट्रूस इबाका के इंकशाफात और सवालात उसे परेशान करने लगे थे। बहुत कुछ ऐसा था जो उसकी नाक के नीचे हो रहा था और उसे पता नहीं था, लेकिन वो इस सब का हिस्सादार था क्योंकि वो सब कुछ उसके दस्तखतों के साथ मंजूर हो रहा था। कांगो में वो पहली बार नहीं आया था, ना ही अफ्रीका और इसके मसाइल उसके लिए नए थे, ना ही वहां के वसाइल पर मगरिब की टपकती हुई राल उसके लिए कोई पोशीदा बात थी। लेकिन वो हमेशा ये समझता रहा था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और कोई भी फलाही काम करने वाली बैनुल-अक़वामी मालियाती तंजीम अपने मफादात को बालाए ताक रखकर किसी मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सकती, और वो उन्हें इतनी छूट देता था। मगर इबाका के एतराजात और इंकशाफात ने उसे हौला दिया था। जो कुछ वहां हो रहा था वो वर्ल्ड बैंक के अपने चार्टर के खिलाफ था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था और वर्ल्ड बैंक की दिलचस्पी और मर्जी से हो रहा था। इबाका की दी हुई फाइलों के अंबार वो कई हफ्ते पढ़ता रहा था। कई हफ्ते वो अपने आप से जंग करता रहा था। वर्ल्ड बैंक की ईमा पर वहां ऐसी कंपनियों को लकड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अफ्रीका के दूसरे बहुत से ममालिक में इसी हवाले से काबिले एतराज रहा था। लकड़ी कट रही थी, जंगल साफ हो रहा था, आबादी बेदखल हो रही थी, और जिन शराइत पर इन कंपनीज को वहां लाइसेंस दिया गया था वो कंपनीज इन शराइत को भी पूरा नहीं कर रही थी। इन्हें लकड़ी के एवज उस इलाके के लोगों की मुआशी हालत सुधारने का फरीजा सौंपा गया था, और वो कंपनियां करोड़ों डॉलर्स की लकड़ी ले जाने के एवज चंद आर्जी नोयत के स्कूल्स और डिस्पेंसरीज लोगों को फराहम कर रही थी। खुराक, खुश्क दूध, नमक और मसाला जात की शक्ल में दी जा रही थी, और ये सब वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स की निगरानी के बावजूद हो रहा था। क्योंकि पिग्मीज को इस मुल्क में अछूत का दर्जा हासिल था, वो इन कंपनीज के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते थे, हुकूमती ओहदेदारान के पास नहीं जा सकते थे। सिर्फ एक काम कर सकते थे, एहतजाज, एनजीओज के जरिए या फिर मीडिया के जरिए, और ये काम बहुत मुश्किल था। वो मुहज़्ज़ब दुनिया का हिस्सा नहीं था जहां पर किसी के साथ होने वाली ज्यादती 4 घंटे में हर बड़े न्यूज चैनल की हेडलाइन बन जाती थी। वो अफ्रीका था जहां पर ऐसी ज्यादती तशद्दुद के जरिए ही दबा दी जाती थी। अगले 2 माह सालार को इबाका के साथ और इनफरादी हैसियत में इन जगहों को खुद जाकर देखने में लगे जिनके बारे में इबाका ने उसे दस्तावेजात दी थी। फिर उसे ये अंदाजा हो गया था कि वो दस्तावेजात और इनमें पाई जाने वाली मालूमात बिल्कुल ठीक थी। ज़मीर का फैसला बहुत आसान था। जो कुछ हो रहा था वो गलत था और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो अब क्या करे। एक इस्तीफा देकर इस सारी सूरत हाल को इसी तरह छोड़कर निकल जाता, और उसे यकीन था ऐसी सूरत में जो कुछ वहां चल रहा था वो चला ही रहता, या फिर वो वहां होने वाली बेज़ाब्तगियों पर आवाज बुलंद करता। बेज़ाब्तगी एक बहुत छोटा लफ्ज था। जो कुछ वर्ल्ड बैंक वहां कर रहा था वो इखलाकियात और इंसानियत की धज्जियां उड़ाने के बराबर था। अफ्रीका में इबाका से मिलने के बाद जिंदगी में पहली बार सालार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के इन अल्फाज को समझा था कि किसी काले को गोरे पर
और किसी गोरे को काले पर कोई सबकत हासिल नहीं। वो हमेशा इन अल्फाज को सिर्फ जात, बरादरी और ऊंच नीच के हवाले से देखता था। वो पहली दफा इस स्याफाम आबादी का हाल और इस्तेहसाल देख रहा था जो दुनिया के एक बड़े खित्ते पर बसती थी, मादनियात और कुदरती वसाइल से माला माल खित्ता, और फिर इस गोरी आबादी की ज़हनी पसमानदगी और हवस देख रहा था जिसका वो भी हिस्सा था, और उसे खौफ महसूस हुआ था। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आने वाले जमानों के हवाले से इसी खित्ते और इसी स्याफाम आबादी के हवाले से कोई पेशगोई थी, या कोई तंबीह जिसे सिर्फ सफेद फाम लोग ही नहीं मुसलमान भी नजरअंदाज किए हुए थे। सदियों पहले गुलामी का जो तौक स्याह फामों के गलों से हटा लिया गया था, 21वीं सदी के मुहज्जब जमाने में अफ्रीका में इस्तेमारियत ने वो तौक एक बार फिर डाल दिया था, और इन्हीं स्याफाम पस्त कामत लोगों में से एक पेट्रूस इबाका था जो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारने के बाद भी वहां से इस स्याह दौर में लौट आया था, सिर्फ अपने लोगों की बका के लिए। बका के लफ्ज का मफहूम सालार सिकंदर ने पेट्रूस इबाका से सीखा था, और इस बकाए बाहमी के लिए क्या क्या कुर्बान किया जा सकता था वो इबाका से ही सीख रहा था। जिंदगी में उसे तकवा का मतलब भी उसी शख्स ने समझाया था जो मुसलमान नहीं था, वो तकवा जिसका जिक्र आखिरी खुतबे में था और जिसको फजीलत हासिल थी। रंग, नस्ल, जात पात, हर उस दुनियावी शय से जिसे बरतर समझा जाता था, पेट्रूस इबाका को अल्लाह का खौफ था। लादीन से कैथोलिक और कैथोलिक से फिर लादीन होने के बावजूद अल्लाह से डरता था, इसे मानता था, इसकी इबादत करता था और इससे मांगता भी था, लेकिन वो ये काम किसी गिरजे, मंदिर या मस्जिद में नहीं करता था। कांगो में अपने लोगों के साथ इंसानियत से गिरा हुआ सलूक होने के बावजूद वो इंसानियत का दर्द रखता था, ईमानदार था और इखलाकी बुराइयों से बचा हुआ था। मगर पेट्रूस इबाका की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो तरगीबात को खुदा खौफी की वजह से छोड़ता था। वो नफ्स परस्त नहीं था, वो तमाज़दा भी नहीं था, और सालार सिकंदर बहुत बार उसे समझ नहीं पाता था। इबाका बिलाशुबा गैर मामूली इंसान था, और वो अगर सालार सिकंदर को मुतासिर कर रहा था तो वो किसी भी इंसान को कर सकता था। वो दुनिया के दो ज़हीन तरीन इंसानों का आमना सामना था। ये कैसे मुमकिन था कि एक मुतासिर होता, दूसरा नहीं? सालार सिकंदर, मैं अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा काबिल और ज़हीन इंसान से नहीं मिला। इबाका ने 1 महीने के बाद सालार के साथ होने वाली कई मुलाकातों के बाद जैसे उसके सामने एतराफ किया था। सालार सिर्फ मुस्कुराकर रह गया था। मैं खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुका हूं और मैं इनमें काम करने वाले बहुत अफराद से मिल भी रहा हूं, लेकिन तुम उन सब में मुख्तलिफ हो। मुझे यकीन है तुम मेरी मदद करोगे। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन अगर तुम इस खुशामद का सहारा मेरी मदद के लिए ले रहे हो और तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के बाद आंखें बंद करके तुम्हारी खातिर इस सलीब पर चढ़ जाऊंगा, तो मेरे बारे में तुम्हारा अंदाजा गलत है। मैं जो भी कदम उठाऊंगा सोच समझ कर उठाऊंगा। इबाका की इस फयाजाना तारीफ को खुशामद करार देने के बावजूद सालार जानता था इबाका को उसकी शक्ल में और इस पोजीशन पर वाकई एक मसीहा मिल गया था। मसीहा भी वो जो वर्ल्ड बैंक में काम करने के बावजूद अपना ज़मीर जबरदस्ती बेहोश तो कर सकता था, सुला नहीं सकता था। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, इबाका ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा था। ये चीज मुझ में नहीं पाई जाती, सालार ने दरकी कहा, और जिस सूरत हाल में तुम मुझे डाल बैठे हो, इसके बाद तो अगले कई सालों भी इसके पैदा होने के कोई इम्कानात नहीं।
मैं बहुत सारे मुसलमानों के साथ पढ़ता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, मगर तुम उनसे मुख्तलिफ हो। वो अजीब तबसरा था, या कम से कम सालार को लगा था। मैं किस तरह मुख्तलिफ हूँ? वो पूछे बगैर नहीं रह सका था। तुम एक अच्छे मुसलमान होने के साथ अच्छे इंसान भी हो। जिनसे मेरा वास्ता पड़ा वो या अच्छे मुसलमान होते थे या अच्छे इंसान। सालार कुछ देर तक बोल नहीं सका, बोलने के काबिल ही कहां छोड़ा था अफ्रीका के इस बेदीन इंसान ने। अच्छा मुसलमान तुम्हारी नजर में क्या है? सालार ने बहुत देर खामोश रहने के बाद उससे पूछा था। तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? इबाका यकदम मोहतात हुआ था। नहीं, मुझे तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग लगी, मगर तुम्हारी जुबान से अदा होने वाला ये पहला जुमला था जिसमें तुम्हारी कम इल्मी झलकी। इस बार इबाका उलझा। वो मजहब डिस्कस करने के लिए नहीं मिले थे, लेकिन मजहब डिस्कस हो रहा था। वो मजहब पर बहस नहीं करना चाहते थे और मजहब पर बहस हो रही थी। अच्छा मुसलमान जो बहुत प्रैक्टिसिंग यानी बाअमल है, सारी इबादत करता है, पोर्क नहीं खाता, शराब नहीं पीता, नाइट क्लब में नहीं जाता, मेरे नजदीक वो एक अच्छा मुसलमान है, जैसे एक अच्छा ईसाई या एक अच्छा यहूदी। इबाका को अंदाजा नहीं था वो अपनी कम इल्मी में भी जो बातें कह रहा था वो सालार सिकंदर को शर्मसार करने के लिए काफी थी। रंज अपने लिए नहीं हो रहा था, अपने मजहब के पैरोकारों के तारुफ पर हो रहा था। यानी कोई फर्क नहीं रहा था, सिर्फ इबादत और बाअमल होने पर एक कम इल्म शख्स के जहन में मुसलमान, ईसाई या यहूदी में। वो लम्हा जाती हैसियत में सालार के लिए सोचने का था। इबाका उसे अच्छा इंसान भी मान रहा था और अच्छा मुसलमान भी, मगर क्या वाकई वो इस मयार पर पूरा उतरता था कि एक बाअमल यहूदी या ईसाई से अपनी शनाख्त अलग रख पाता? कांगो के इस जंगल में इबाका के साथ बैठे सालार ने कभी मजहब को इस जाविये से नहीं देखा था जिस जाविये से पेट्रूस इबाका देख रहा था। ये बदकिस्मती की बात है या सिर्फ इत्तेफाक कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी अच्छे मुसलमान, अच्छे ईसाइयों या अच्छे यहूदियों से अच्छे तजुर्बात नहीं हुए। वो मुझे कभी मुतासिर नहीं कर सके, और जिन्होंने मुतासिर किया और जिन्हें मैं आज तक अच्छे इंसानों की फहरिस्त में रखता हूं, वो कभी मजहबी नहीं थे, बाअमल नहीं थे। रेवरेंड जॉनसन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सालार ने बेसाख्ता कहा। वेल, इबाका कहकर मुस्कुराया था। उनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं, लेकिन वो कभी मेरे आइडियल नहीं बन सके। क्यों? वो सवालों जवाब सालार को अजीब लुत्फ दे रहे थे। इन एहसानों की एक कीमत थी। वो मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। जब मैंने वो मजहब इख्तियार कर लिया तो फिर उन्होंने वो सारे एहसानात एक क्रिश्चियन बच्चे पर किए। एक इंसान के तौर पर सिर्फ इंसान समझकर तो उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मजहब किसी के दिल और दिमाग में जबरदस्ती नहीं डाला जा सकता। मैं यूनिवर्सिटी जाने तक चर्च जाता रहा, फिर नहीं गया। इबाका मध्यम आवाज में कह रहा था। शायद उसे रेवरेंड जॉनसन को मायूस करने पर अफसोस भी था और पछतावा भी। मैंने थोड़ा बहुत सब मजाहिब का मुताला किया है, सब अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं जो इंसान इन मजाहिब का पैरोकार हो जाता है वो अपनी अच्छाइयां क्यों खो बैठता है। तुम्हें लग रहा होगा मैं फिलोसफर हूं। इबाका को बात करते करते एहसास हुआ था सालार बहुत देर से खामोश था। उसे लगा वो शायद उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। नहीं, इतना फिलोसफर तो मैं भी हूं, सालार ने मुस्कुराकर कहा। तुम अमेरिका से यहां वापस कैसे आ गए? सालार ने उससे वो सवाल किया जो उसे अक्सर उलझाता था। एक चीज जो मैंने रेवरेंड जॉनसन से सीखी थी वो अपने लोगों के लिए ईसार था, अपनी जात से आगे किसी दूसरे के लिए सोचना। अमेरिका बहुत अच्छा था, वहां मेरे लिए मुस्तकबिल था, लेकिन सिर्फ मेरा मुस्तकबिल था।
मेरी कौम के लिए कुछ नहीं था। मैं कांगो का पस्त कामत हकीर से अफाम था, और मैं अमेरिका में भी कांगो पिग्मी का ही रहा। लेकिन मैं कांगो में कुछ और बनने का ख्वाब लेकर आया हूं, इबाका कह रहा था। और वो क्या है? सालार को फिर तजस्सुस हुआ था कांगो का सदर बनने का। सालार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम हंसे नहीं, इबाका ने जवाबन कहा था। तुमने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं हंस पड़ूं। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पढ़ने के बाद तुम्हें इतने ही बड़े ख्वाब देखने चाहिए। इबाका उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। वो महीने सालार के लिए बेहद परेशानी के थे। क्या करना चाहिए और क्या कर सकता था के दरमियान बहुत फासला था। वो इबाका की मदद ना भी करता तब भी वो जितनी जांफिशानी से वो अपने हकूक की जंग लड़ रहा था, सालार को यकीन था जल्द या बदेर वर्ल्ड बैंक के चेहरे पर कालक मलने वाला एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला था। हिफाजती इक़दामात का वक्त अब गुजर चुका था। पेट्रूस इबाका सिर्फ कंगाला या स्वाहिली बोलने वाला एक पस्त कद स्याह फाम नहीं था जिसे कांगो के जंगलात तक महदूद किया जा सकता। वो अमेरिका में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने वाला शख्स था जिसके कॉन्टैक्ट्स थे। वो राब्ते वक्ती तौर पर अगर वो उसके काम नहीं भी आ रहे थे तो भी उससे इबाका कमजोर नहीं पड़ा था, बल्कि कई हवालों से वो ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा था। वो सिर्फ पिग्मीज की आवाज नहीं रहा था, बल्कि बांटो कबीले के बहुत से अफराद की आवाज भी बन चुका था। वो पिग्मीज की तरह जंगलात पर इन्हसार करते थे। अगला कोई कदम उठाने से पहले ही इबाका के साथ उसका मेल जोल उन लोगों की नजरों में आ गया था जिनके मफादात वर्ल्ड बैंक के जरिए पूरे हो रहे थे। सालार पर नजर रखी जाने लगी थी, और इससे पहले कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, इंग्लैंड के एक अखबार ने पेट्रूस इबाका की फराहम की गई मालूमात की तहकीक करने के बाद कांगो के पिग्मीज और वर्ल्ड बैंक के कांगो के बारानी जंगलात में होने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एक कवर स्टोरी की थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक के किरदार के हवाले से बहुत सारे एतराजात उठाए गए थे। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में जैसे हलचल मच गई थी। वर्ल्ड मीडिया में इस मामले की रिपोर्टिंग और कवरेज को दबाने की कोशिश की गई थी, मगर इससे पहले ही यूरोप और एशिया के बहुत सारे मुमालिक के मुमताज अखबारात इस आर्टिकल को रीप्रिंट कर चुके थे, और वर्ल्ड बैंक के अंदर मची वो हलचल उस वक्त अपने अरूज पर पहुंच गई थी जब सालार सिकंदर की तरफ से हेड ऑफिस को कांगो में चलने वाले इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक तफसीली ईमेल की गई, जिसमें उसने मुख्तलिफ माहौलियाती इदारों से मिलने वाला डेटा भी मुंसलिक किया था, जो इन जंगलात की इस तरह कटाई को एक बड़े माहौलियाती अदम तवाजुन का पेश खैमा करार दे चुके थे। एक इंसानी अलमिया के अलावा उसका वो खत बैंक के आला ओहदेदारान के लिए शदीद परेशानी का बायस बना था, और यही वो वक्त था जब सालार सिकंदर को नामालूम जराए की तरफ से धमकियों का आगाज हुआ था। वो प्रोजेक्ट्स जो उन्हें चलाने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर्स की आमदनी दे रहे थे, बैंक के अपने कंट्री हेड की मुखालिफत का बायस बनते तो वो कंपनीज और उनके पीछे खड़ी बैनुल-अक़वामी ताकतें खामोश तमाशाई नहीं बनी रह सकती थी। कोई आम सूरत हाल होती तो उस वक्त तक सालार सिकंदर से इस्तीफा लेकर उसे बड़े हतक आमेज तरीके से मुलाजमत से फारिग किया जा चुका होता, मगर इस वक्त उसका इस्तीफा इंटरनेशनल मीडिया के तजस्सुस को और उभार देता। वो तूफान जो अभी चाय के कप में आया था वो उससे बाहर आ जाता। इस ईमेल का जवाब सालार सिकंदर को एक तंबीह की सूरत में दिया गया था, जो सादा लफ्जों में खामोश हो जाने की ताकीद थी और सालार के लिए गैर मुतवक्को नहीं थी। बैंक ने ना सिर्फ इस ईमेल में होने वाले उसके तज्जिये को नापसंद किया था, बल्कि पेट्रूस इबाका की फराहम की जाने वाली बुनियाद पर गार्डियन में शाया होने वाली कवर स्टोरी का मलबा भी उसके सर डालते हुए उसे
इबाका और उस कवर स्टोरी में इस्तेमाल होने वाली मालूमात का जरिया करार दिया गया था। ये इल्जाम सालार सिकंदर के प्रोफेशनल काम पर एक धब्बे के मुतरादिफ था। पेट्रोस इबाका से हमदर्दी रखने, मुतासिर होने और मेल जोल के बावजूद सालार ने उससे बैंक की किसी इंफॉर्मेशन या दस्तावेज की बात कभी नहीं की थी। इबाका ने सारी मालूमात या दस्तावेजात कहां से ली थी, वो इबाका के अलावा और कोई नहीं जानता था। इस तंबी के जवाब में सालार ने बैंक को अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसे मॉनिटर किया जाता था। उसकी फोन कॉल्स टेप हो रही थी और उसकी ईमेल्स हैक हो रही थी। दिनों में उसके ऑफिस का माहौल तब्दील हो गया था। उसने बैंक की नाराजगी और हिदायत के बावजूद इबाका से ना तो अपना मेल जोल खत्म किया था, ना ही राबिता खत्म किया था। इस्तीफा की पेशकश के साथ उसने बैंक को कांगो में चलने वाले जंगलात प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी तफसीली रिपोर्ट भी भेज दी थी, जो सालार सिकंदर की अपनी तहकीकात और मालूमात की बुनियाद पर थी, और तवक्को के मुताबिक उसे वॉशिंगटन तलब कर लिया गया था। इमामा को इस सारी सूरत हाल के बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो उम्मीद से थी और सालार उसे इस टेंशन का हिस्सादार बनाना नहीं चाहता था जिससे वो खुद गुजर रहा था। सब कुछ ठीक है सालार। वो इस रात सालार की पैकिंग कर रही थी। जब पैकिंग करते उसने अचानक सालार से पूछा था। वो अपना ब्रीफकेस तैयार कर रहा था। हाँ यार, तुम क्यों पूछ रही हो? सालार ने उससे जवाबन पूछा। तुम वाशिंगटन क्यों जा रहे हो? वो अपने खदशों को किसी मुनासिब सवाल की सूरत में नहीं ढाल सकी थी। मीटिंग है और मैं तो अक्सर आता जाता रहता हूं, कहीं ना कहीं। इस बार तुम्हें इस तरह के सवाल क्यों पूछने पड़ रहे हैं? अपना ब्रीफकेस बंद करते हुए उसने इमामा से कहा था। पहले कभी तुम इतने परेशान नहीं लगे। बात पर चंद लम्हे बोल नहीं सका। कोशिश के बावजूद उसका चेहरा उसकी ज़हनी कैफियत को इमामा से पोशीदा नहीं रख सका था। नहीं, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। बस शायद ये होगा कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। इमामा के कंधे पर हाथ रखे उसने अपने अल्फाज और लहजे को मुमकिन हद तक नॉर्मल रखने की कोशिश की। इस बार भौंचका होने की बारी इमामा की थी। जॉब छोड़नी पड़ेगी? तुम तो अपनी जॉब से बहुत खुश थे। वो हैरान ना होती तो क्या करती? था, लेकिन अब नहीं हूं, सालार ने मुख्तसरन कहा था। कुछ मसले हैं, तुम्हें वापस आकर बताऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। कहाँ हैं वो दोनों? सालार ने बात बड़ी सहूलत से बदल दी थी। एक लम्हा के लिए इस वक्त उसे ख्याल आया था कि उन हालात में उसे अपने बच्चों और इमामा को किनशासा में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हल क्या था उसके पास? इमामा की प्रेगनेंसी के आखिरी महीने चल रहे थे। वो हवाई जहाज का सफर नहीं कर सकती थी और वो वॉशिंगटन में होने वाली इस मीटिंग को मुअख्खर या कैंसिल करने की सवाबदीद नहीं रखता था। तुम अपना और बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो अब बच्चों के कमरे में बिस्तर पर सोए हुए जिब्रील और इनाया को प्यार कर रहा था। उसकी फ्लाइट चंद घंटों बाद थी। मुलाजमा को अपने पास घर पर रखना मेरी गैर मौजूदगी में, उसने इमामा को हिदायत करते हुए कहा था। तुम हमारी फिक्र मत करो, 3 दिन ही की तो बात है। तुम सिर्फ अपनी मीटिंग को देखो। आई होप वो ठीक रहे। इमामा को वाकई उस वक्त तशवीश उसकी मीटिंग की ही थी। उसे आधे घंटे में निकलना था। उसका सामान पैक था। वो दोनों चाय का एक आखिरी कप पीने के लिए लाउंज में साथ बैठे थे और इस वक्त चाय का पहला घूंट पीने से पहले सालार ने उससे कहा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा। इमामा अपनी चाय उठाते हुए ठटकी, फिर हंसी। आज बहुत अरसे के बाद तुमने कहीं जाने से पहले ऐसी कोई बात कही है। खैरियत है? वो अब उसका हाथ थपक रही थी। सालार ने मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया। हाँ, खैरियत है, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए फिक्रमंद हूं। अकेली तो नहीं हूं मैं, जिब्रील और इनाया हैं मेरे साथ।
तुम परेशान मत हो। सालार चाय के घूंट भरता रहा। इमामा चाय पीने लगी, लेकिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता था। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। वो चाय पीते हुए चौंका, फिर मुस्कुराया। वो हमेशा उसे बूझ लेती थी, हमेशा। एक एतराफ करना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, वापस आकर करूंगा, उसने चाय का कप रखते हुए कहा। मुझे तुम्हारी ये आदत सख्त नापसंद है। हर दफा कहीं जाते हुए मुझे उलझा जाते हो। मैं सोचती रहूंगी कि पता नहीं क्या एतराफ करना है। इमामा ने हमेशा की तरह बुरा माना था, और उसका गिला गलत नहीं था। वो हमेशा ऐसा ही करता था, और जानबूझकर करता था। अच्छा, दोबारा कभी नहीं करूंगा। वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ था। उसके जाने का वक्त हो रहा था। बाजू फैलाए वो हमेशा की तरह जाने से पहले इमामा से आखिरी बार मिल रहा था। हमेशा की तरह एक एक गर्म जोश मुआने का। आई विल मिस यू, जल्दी आना। वो हमेशा की तरह जज्बाती हुई थी, और वही कलिमात दोहरा रही थी जो वो हमेशा दोहराती थी। पोर्च में खड़े आखिरी बार उसको खुदा हाफिज कहने के लिए उसने अलविदाइया अंदाज में सालार की गाड़ी के चलते ही हाथ हिलाया था। गाड़ी तेज रफ्तारी से तवील पोर्च को अबूर करते हुए खुले हुए गेट से बाहर निकल गई थी। इमामा को लगा था जिंदगी और वक्त दोनों थम गए थे। वो जब कहीं चला जाता वो उसी कैफियत से दो चार होती थी। आज भी हो रही थी। गार्ड ने अब गेट बंद कर दिया था। शादी के 6 साल के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। जिंदगी जैसे एक पटड़ी पर चलने लगती है, रोजमर्रा के मामूल की पटड़ी पर। न चाहते हुए भी इंसान दायरों में सफर करने लगता है। 2 बच्चों की आमद सालार और इमामा की जिंदगी को भी बड़ी हद तक एक दायरे के अंदर ले आई थी, जहां अपनी जात पीछे चली जाती है। सेंटर स्टेज बच्चों के पास चला जाता है। खदशात, तवक्कुआत और गलत फहमियों का वो जाल जिसमें एक नया शादीशुदा जोड़ा शादी के शुरू के कुछ अरसा में जकड़ा रहता है, वो टूटने लगता है। एतमाद लम्हा भर में बद एतमादी में नहीं बदलता। बेएतबारी पल भर में गायब होना सीख जाती है। गिला गूंगा होना शुरू हो जाता है। बंधन आदत में बदलने लगता है, और जिंदगी मामूल बनते हुए यूं गुजरने लगती है कि इंसान दिनों, हफ्तों, महीनों की नहीं, सालों की गिनती भूल जाता है। इमामा भी भूल गई थी। पीछे पलटकर वो देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि पीछे यादें थीं, और यादें ऑक्टोपस बनकर लिपट जाने की खासियत रखती थीं। पीछे अब कुछ रहा भी नहीं था, और जो रह गए थे उनके लिए वो कब की मर चुकी थी। इस बोर्ड रूम का माहौल वैसा नहीं था जैसा सालार ने हमेशा देखा था। संजीदगी हर बोर्ड का हिस्सा होती थी, लेकिन जो उसने इस दिन वहां देखी थी वो संजीदगी नहीं थी, वो सर्द महरी थी। और वो सर्द महरी बोर्ड रूम में बैठे सिर्फ किसी एक या 2 लोगों के अंदाज और हरकतों सकनात से नहीं झलक रही थी। वहां इस बोर्ड रूम में बैठे 7 के 7 लोगों के चेहरों और आंखों में एक जैसी ठंडक और सर्द महरी थी। ऐसी सर्द महरी जो किसी कमजोर आसाब के इंसान को हवास बाख्ता करने के लिए काफी थी। बेतासुर चेहरे, दूसरे के औसान खता कर देने वाली नजरें, किसी दोस्ताना मुस्कुराहट से आरी भिंचे हुए लब, जिन पर अगर कभी कोई मुस्कुराहट आती भी तो वो एक तज़हीक आमेज और तौहीन आमेज खम से ज्यादा कुछ नहीं होता था, जो पल भर रहकर गायब हो जाता था। एक बेज़वी शक्ल की मेज के गिर्द टांगों पर टांगे रखे वो 5 मर्द और 2 औरतें इस काम के माहिर थे जो इस वक्त कर रहे थे। वो वर्ल्ड बैंक के सालार सिकंदर जैसे कई बाज़मीर एम्प्लॉइज का धड़न तख्ता कर चुके थे, जिन्हें जिंदगी में कभी बैठे बिठाए वर्ल्ड बैंक में काम करते करते प्रोफेशनल एथिक्स यानी इखलाकियात का दौरा पड़ता। इंसानियत याद आना शुरू हो जाती।
سالار سکندر ان کے سامنے کیا شے تھا؟ کم از کم اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے وہ یہی سوچ کر آئے تھے۔ اجتماعی طور پر ان کی حکمت یہ نہیں بھی تھی، تو بھی انفرادی طور پر ان کا طریقہ کار یہی تھا۔ وہ 7 لوگ سالار سکندر کے کریئر کے حوالے سے ایک ایک چیز جانتے تھے اور اتنی ہی معلومات وہ ان کے بارے میں رکھتا تھا۔ ان میں سے کسی کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ سالار سکندر نے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سربراہی کرنے والے ہیڈ کے ابتدائی کلمات بڑے تحمل سے سنے تھے۔ وہ سالار سکندر کی نااہلی، کوتاہیوں اور ناکامیوں کو ڈسکس کر رہا تھا۔ سالار نے باقی 6 لوگوں کی نظریں خود پر جمی محسوس کی۔ وہ ایک چارج شیٹ تھی جو اس پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے مائیکل فرینک اس پر لگا رہا تھا۔ سالار بھی اتنے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ ان الزامات کو سنتا رہا۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سالار کے لیے وہ سب الزامات غیر متوقع نہیں تھے۔ میں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے دے گی جو آپ لوگ مجھ پر کر رہے ہیں۔ سالار نے مائیکل کے ابتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کا جواب دینے کی بجائے کہا تھا۔ ان 7 افراد میں سے کسی نے اسے اس پریزنٹیشن کو پیش کرنے سے روکا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی نے اس پریزنٹیشن کی نوعیت اور مقصد جاننے میں دلچسپی بھی نہیں لی تھی۔ سالار ایک کے بعد ایک سلائیڈ پروجیکٹر پر دکھاتا گیا۔ اس میں بہت سارے حقائق اور اعداد و شمار تھے اور اس کی اپنی ذاتی تحقیق تھی۔ وہ ان تمام چیزوں کو ان سلائیڈز کے ذریعے دکھا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے اگر وہ منصوبہ توڑ چڑھ جاتا تو افریقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ پگمیز کی ممکنہ تباہی کے حوالے سے ہولناک اعداد و شمار، ورلڈ بینک کے چارٹر کی کون کون سی شکوں کی خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہو رہی تھی، ان جنگلات میں کام کرنے والی کمپنیز کی طرف سے کانگو کی مقامی آبادی کے استحصال کی ڈاکومنٹری ثبوت اور انٹرنیشنل ڈونر کمپنیز اور NGO کے خدشات پر مشتمل رپورٹس کے حوالے سے اس کی پریزنٹیشن مکمل تھی، اور وہ اگر کسی اخبار یا نیوز نیٹ ورک کے ہاتھ لگ جاتی تو افریقہ میں وہ ورلڈ بینک کا سب سے بڑا سکینڈل ہوتا۔ ان 7 لوگوں نے وہ پریزنٹیشن بے تاثر چہروں کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر ساکت بیٹھے دم سادے دیکھی تھی، لیکن آدھ گھنٹہ کی اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے کے بعد ان 7 کے ذہن میں جو خدشہ ابھرا تھا وہ ایک ہی تھا۔ سالار سکندر کے ہاتھ میں وہ گرنیڈ تھا جس کی پن وہ نکال کر اسے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گرنیڈ دوسرے کی طرف پھینک دینے سے ان کی جان چھوٹ جاتی، وہ جہاں بھی پھٹتا وہیں تباہی پھیلاتا۔ پروجیکٹر کی سکرین تاریک ہوئی۔ سالار نے اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے ان 7 لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی۔ مائیکل کے چہرے کو دیکھا جو اس کی صدارت کر رہا تھا۔ اتنے سالوں کی پبلک ڈیلنگ کے بعد وہ اتنا اندازہ تو لگا ہی پایا تھا کہ اس نے پریزنٹیشن تیار کرنے اور اسے یہاں پیش کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا تھا۔ تو تم اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے؟ مائیکل نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ اس نے بورڈ روم میں موجود لوگوں کے حوالے سے سالار کے خدشات کی جیسے تصدیق کی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کانگو میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے۔ تمہید اگر مائیکل نے نہیں باندھی تھی تو سالار نے بھی اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ تم مضحکہ خیز باتیں کر رہے ہو۔ اتنے سالوں سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیکٹ کو ورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عہدیدار کے کہنے پر ختم کر دے کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کانگو میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ جولیا پیٹرورڈ تھی جس نے بے حد تضحیک آمیز انداز میں سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سالار سے کہا تھا۔ وہ اس کمرے میں مائیکل کے بعد سب سے سینئر تھی۔ اگر میں فوبیا کا شکار ہوں یا یہ میرا دماغی خلل ہے تو یہ بیماری اس وقت ان جنگلات میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو لاحق ہو چکی ہے۔
सालार सिकंदर ने तरकीबा तरकी जवाब दिया था। तुम क्या हो? किस हैसियत में कांगो में बैठे हो? वर्ल्ड बैंक के एक एम्प्लॉय के तौर पर या एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर? कांगो के लोग या पिग्मीज तुम्हारा सरदर्द नहीं है। तुम्हारी तरजीह सिर्फ एक होनी चाहिए कि तुम मुकर्ररा वक्त पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करो और तमाम अहदाफ के हसूल के साथ। इस बार बात को तुर्शी से काटने वाला अलेक्जेंडर राफेल था, जो वर्ल्ड बैंक के सदर के करीब तरीन मुआवनीन में से एक था। तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, वो शराइत और ज़वाबित पढ़ी हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में है और जिनसे तुमने इत्तफाक करते हुए साइन किए हैं। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और बैंक तुम्हें जॉब से निकालने का पूरा इख्तियार रखता है इसके बदले में। उसके लहजे की रुखाई उसका शनाख्ती निशान था। वो इस रुखाई और बेमहरी के लिए जाना जाता था। सालार वहां मौजूद तमाम लोगों को उनकी काबिलियत के अलावा उनकी खसूसियात के हवाले से भी जानता था। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार पढ़ा है। मैंने वर्ल्ड बैंक का चार्टर भी पढ़ा है और ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ना वर्ल्ड बैंक के चार्टर में कहीं यह तहरीर है कि मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो बुनियादी इंसानी हकूक और किसी मुल्क के कवानीनों ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाकर हो सके। अगर ऐसी कोई शिक मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी और मैं इसे नजरअंदाज कर बैठा हूं, तो आप मुझे रेफरेंस दें। मैं अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट में इसे पढ़ लेता हूं। ईमेल की सूरत में मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास मौजूद है। उसने लैपटॉप एक बार फिर ऑन किया था। अलेक्जेंडर राफेल चंद लम्हों के लिए बोल नहीं सका। उसके माथे पर बल थे और मुसलसल तनाव में रहने की वजह से वो मुस्तकिल झुर्रियों में तब्दील हो चुके थे। वो सिर्फ उस वक्त चेहरे से खुशगवार लगता जब उसके चेहरे पर भूले भटके हुए मुस्कुराहट आती, वरना करिख्तगी उसके मिजाज के साथ साथ उसके चेहरे का भी एक नुमाया हिस्सा थी। अपनी करंजी आंखों को मोड़ते हुए उसने सालार से कहा, तुम अपने आप को उन लोगों से ज्यादा काबिल समझते हो जिन्होंने ये प्रोजेक्ट कई साल की तहकीक के बाद शुरू किया था। तुम समझते हो जिन्होंने फिजिबिलिटी बनाई थी वो इडियट्स थे। वो अब तज़हीक आमेज अंदाज में उससे पूछ रहा था। नहीं, वो इडियट्स नहीं थे और ना ही मैं इडियट हूं। वो फेयर नहीं थे और मैं हूं। बात सिर्फ इस दयानत की है जो इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हुए नजरअंदाज की गई है, वरना यह मुमकिन ही नहीं कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने वाले इतने अक्ल के अंधे और नाअहल हों कि उन्हें वो सब नजर ना आया हो जो मुझे नजर आ रहा है और मेरे अलावा और लाखों मुकामी लोगों को नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक को इस प्रोजेक्ट के हवाले से दोबारा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एक इंक्वायरी कमेटी बनाकर। मुझे यकीन है कि उस कमेटी ने दयानतदारी से काम किया तो उन्हें भी ये सब नजर आ जाएगा जो मुझे नजर आ रहा है। सालार सिकंदर ने राफेल के हतक आमेज जुमलों को नजरअंदाज करते हुए कहा था, मेरे ख्याल में बेहतर है कि इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक काम किया जाए जो वॉशिंगटन और बॉम्बे में तुम्हारे ऑफिस में इस प्रोजेक्ट के हवाले से पैदा हो गया है। इस बार बोलने वाला बिल जॉल्स था। वो वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक की मीडिया कोऑर्डिनेशन को मॉनिटर करता था और इस प्रोजेक्ट के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में आने वाली खबरों को दबाने में उसकी काबिलियत और असर व रसूख का बड़ा अमल दखल था। तुम रिजाइन कर दो, जिसे तुमने प्रेजेंटेशन और बैंक के साथ होने वाली ऑफिशियल खतो किताबत में भी ऑफर किया था कि इस प्रोजेक्ट को तुम इस तरह नहीं चला सकते। वो बड़े तहम्मुल और रसानियत से सालार सिकंदर को जैसे सलाह दे रहा था। अगर ये ऑप्शन वर्ल्ड बैंक को ज्यादा मुनासिब लगता है तो मुझे भी इस पर कोई एतराज नहीं है। मुझे भी इस मसले का हल सिर्फ मेरा इस्तीफा नजर आ रहा है, लेकिन मैं अपने इस्तीफे की वजूहात में इस प्रेजेंटेशन में दिए जाने वाले सारे आदादो शुमार शामिल करूंगा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी लिखूंगा और मैं इस इस्तीफे को पब्लिक करूंगा। बोर्ड रूम में चंद लम्हों के लिए खामोशी छाई थी। वो बिलाखिर इस एक नुक्ते पर आ गए थे
जिस के लिए सालार सिकंदर को कांगो से वॉशिंगटन तलब किया गया था और जो वर्ल्ड बैंक के गले में हड्डी बनकर फंसा हुआ था। बोर्ड रूम में बैठे इन 7 लोगों के पास सिर्फ 2 टास्क थे, या सालार सिकंदर को इस प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए तैयार किया जाए और उससे कहा जाए कि वो रिपोर्ट वापस ले ले जो उसने वर्ल्ड बैंक को इस हवाले से इरसाल की थी, या फिर इससे खामोशी से इस्तीफा लिया जाए और वो इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर होना चाहिए। इसके अलावा और कोई वजह उसके तहरीरी इस्तीफे में बयान नहीं होनी चाहिए। और अब मसला इससे बढ़ गया था। वो ना सिर्फ इस्तीफे में ये सब कुछ लिखना चाहता था, बल्कि इस इस्तीफे और इस रिपोर्ट को पब्लिक भी करना चाहता था। अगले 3 घंटे तक वो बोर्ड रूम में बैठे हुए 7 अफराद उसके साथ बहस करके उसे कायल करने की कोशिश करते रहे थे। उन्होंने उस पर हर हरबा इस्तेमाल कर लिया था। जब दलीलों से काम नहीं बना था तो उन्होंने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में इस्तीफे के हवाले से कुछ शिकों को उठाकर उसे धमकी दी थी कि वो जॉब के दौरान अपने इल्म में लाए गए तमाम प्रोफेशनल मामलात को सीगाए राज में रखने का पाबंद है, और इस इस्तीफे को पब्लिक करने और इस रिपोर्ट को मीडिया पर लाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, और उसे ना सिर्फ माली तौर पर लंबा चौड़ा हर्जाना भरना पड़ता, बल्कि वो आइंदा बैंक या इससे मुंसलिक किसी भी छोटे बड़े इदारे की जॉब करने के लिए नाअहल करार दे दिया जाता। सालार सिकंदर को पता था ये धमकी नहीं थी, बहुत बड़ी धमकी थी। वो बिलवास्ता तौर पर उसे बता रहे थे कि वो उसके प्रोफेशनल कैरियर को कम से कम सिर्फ वर्ल्ड बैंक में ही नहीं बल्कि इन तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में खत्म कर देते जो अमेरिका की सरपरस्ती में चलती थी, और उसे पता था वो ये कैसे कर सकते थे। वो अब बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस सतह पर काम कर रहा था, वहां इसके हवाले से एक छोटी सी कानूनी चाराजोई भी एक इकोनॉमिस्ट फाइनेंशियल तज्जियाकार के तौर पर उसकी साख तबाह करके रख देती। वो अब बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस सतह पर काम कर रहा था, वहां उसके हवाले से एक छोटी सी कानूनी चाराजोई भी एक इकोनॉमिस्ट फाइनेंशियल तज्जियाकार के तौर पर उसकी साख तबाह करके रख देती। कोई नामवर इदारा उसके खिलाफ इस तरह के इल्जामात पर होने वाली कानूनी चाराजोई के बाद उसे कभी ना रखता कि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद राजदारी की शिक की खिलाफ वर्जी की थी। ये उसकी साख पर लगने वाला ऐसा धब्बा होता जिसे वो कभी भी मिटा नहीं सकता था। इन 7 लोगों ने उसे ये धमकी भी दी थी कि वर्ल्ड बैंक उसके मातहत कांगो में चलने वाले प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से ऑडिट करवाएगा और माली और दूसरी बेज़ाब्तगियों के बहुत से सबूत निकालकर उसे बहुत बेइज्जत तरीके से इस ओहदे से फारिग किया जा सकता था जिस पर वो काम कर रहा था। फिर अगर वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपनी रिपोर्ट लेकर मीडिया के पास भी जाता, तब भी उसके इल्जामात और रिपोर्ट अपनी हैसियत खो देते, क्योंकि बैंक के पास जवाबी तौर पर उसके खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ होता और मीडिया उसकी इस रिपोर्ट को जाती अनाद और बुग़्ज़ के अलावा और कुछ नहीं समझता। वो निचले दर्जे की ब्लैकमेलिंग थी जिस पर वो उतर आए थे। सालार जानता था वो ये कर भी सकते थे। उसकी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल दयानतदारी पर वर्ल्ड बैंक में कभी उंगली नहीं उठाई गई थी और उसका प्रोफेशनल रिकॉर्ड इस हवाले से काबिल रश्क था, लेकिन वो जानता था अगर वो वर्ल्ड बैंक कांगो में उसके ऑफिस के जरिए चलने वाले प्रोजेक्ट्स में कोई सुकुम या गबन तलाश करने पर मसर था तो वो ये ढूंढ ही लेते। वो या दुनिया का कोई बंदा वर्ल्ड बैंक की ऑडिट टीम की छुरी से नहीं बच सकता था। अगर उन्हें इस मकसद के साथ भेजा गया हो कि उन्हें किसी जगह पर हर सूरत में कोई माली बेसाख्तगी तलाश करना ही थी। आम हालात में सालार इस तरह के किसी मामले पर अपने आप को इतनी मुश्किल सूरत हाल में कभी ना डालता, खास तौर पर अब जब उसकी एक फैमिली थी, एक बीवी थी, कम सिन बच्चे थे जो उस पर इन्हिसार करते थे। लेकिन ये आम हालात नहीं थे। पेट्रूस इबाका ने उसे इन सारे मामलात के मामले में बेहिस नहीं रहने दिया था। ये उसकी बदकिस्मती थी। वो अफ्रीका और पिग्मीज के बारे में जज्बाती होकर सोचने लगा था और उसकी यही जज्बातियत
इस वक्त उसके आड़े आ रही थी। खामोशी से इस मामले पर इस्तीफा देकर इस सारे मामले से अलग हो जाने का मतलब सिर्फ एक था, वो भी उस जुर्म का शरीक-ए-कार होता जो 21वीं सदी की इस तिहाई में कांगो में पिग्मीज के साथ किया गया होता। वो रोकने वालों और एहतजाज करने वालों में शामिल होकर तारीख का हिस्सा न बनता, मगर उसका मसला तारीख का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ ज़मीर की चुभन से बचने की ख्वाहिश थी जो जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पर उसे एहसास जुर्म का शिकार करती। दबाव और धमकियां जितनी बढ़ती गई थी, सालार सिकंदर की जिद भी उतनी ही बढ़ती गई थी। अगर सिकंदर उस्मान उसके बारे में ये कहते थे कि ढटाई में उसका कोई मुकाबला नहीं, तो वो ठीक ही कहते थे। उसका एक अमली मुजाहिरा उसने वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स में 7 लोगों के इस ग्रुप के सामने भी पेश कर दिया था, जो सालार सिकंदर जैसे ओहदेदारान को चुटकी बजाते में मोम की नाक की तरह मोड़ लेते थे। तुम क्या चाहते हो? 3 घंटे के बाद बिलाखिर माइकल ने उसकी जिद के सामने हथियार डालते हुए जैसे उससे पूछा। एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी टीम जो इस प्रोजेक्ट का नए सिरे से जायजा ले और इसके बाद पिग्मीज और इन बारानी जंगलात के बेहतरीन मुफाद में इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दे, या कोई ऐसा हल निकाला जाए जो इन जंगलात में रहने वाले लोगों के लिए काबिल कबूल हो। और मैं मुकामी लोगों की बात कर रहा हूं, वहां की मुकामी हुकूमत और उसके ओहदेदारान की बात नहीं कर रहा। सालार सिकंदर ने जवाबन वही मुतालबा दोहराया था जो उसकी प्रेजेंटेशन की बुनियाद था। तुम्हारी कीमत क्या है? अलेक्जेंडर ने जवाबन जो सवाल उससे किया था, उसने सालार सिकंदर को जैसे बात करने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो इस हेडक्वार्टर्स में हर नरम गर्म गुफ्तगू की तवक्को कर सकता था, लेकिन मामलात को निपटाने के लिए इस जुमले की नहीं। कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके लिए तुम अपने इस मुतालबे से हट जाओ। हमें बताओ, वो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर तुम हमसे सौदा कर लो? राफेल ने बात जारी रखते हुए कहा। सालार ने टेबल पर रखी अपनी चीजें समेटना शुरू कर दी। मेरी कोई कीमत नहीं है, और मैंने वर्ल्ड बैंक को इसी गलतफहमी में ज्वाइन किया था कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा जो दुनिया में अपनी प्रोफेशनल महारत और काबिलियत से जाने जाते हैं। अगर ब्रोकर्स के साथ काम करना होता, बेचने, खरीदने और कीमत लगाने वाला तो स्टॉक एक्सचेंज में काम करता या किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग।